Hello students, how are you? Myself Tosip sir. Welcome to the science lecture. As you know, we are on unit number 1. Name is matter in our surrounding. Today's lecture's topic is can matter change its state? क्या मैटर अपनी अवस्था बदल सकती है? तो चलिए आइए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए देखते हैं सबसे पहले फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ today's topic, I will take one example of matter, which is water. Right? You are very familiar with this substance. So let me tell water is in which state? Solid, liquid, or gaseous? Sir, it is in a liquid state. But if I am not wrong, I will tell that the water will exist in all three type of states. You will tell me, sir, how it will possible? It is possible. Open your fridge and see inside the refrigerator, in the icebox chamber, you will fill the water in that tubs, and after certain time, you will see that it convert into the solid state. How you identify that it is in a solid state? Because if you take out one ice cube has a distinct shape, distinct boundaries, fixed volume, it is rigid. So the form of water, which is ice, it is in a solid state. Already water is in a liquid state in form of water, and if you put water in one vessel and then after supply the heat on a gas, through the gas, then the water will starts converted into the vapor. Vapor is a which kind of form? Gaseous form. The water molecules inside the vessel starts evaporating or starts vaporizing. Means the liquid starts converting into the vapor. Vapor is a gaseous form. So the water is a substance which is available in all three states of matter: solid, liquid, and gas. So first of all, what is our topic? Let us again revise. Can matter change its state? क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है? फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू विल टेल यस sir, it is possible to change the state of matter. But how? How we can change the state of matter? So first way to change the state of matter is through the temperature. Right? By lowering the temperature, the water will converted into the ice, which is a solid form. And if you are increasing the temperature, the liquid start vaporizing and converted into the gaseous form. So what you are doing, first you are decreasing the temperature below 0 degree Celsius, and then after you will increasing the temperature up to 100 degree Celsius or more than 100 degree Celsius. Right? So first, with the help of temperature, we can change the state of matter. How it will be there? Or how the matter will change its state, let us understand, right? First of all, I will take one situation, heating the ice cubes. Let us start the heating of ice cube. आइस क्यूब को मैं क्या करता हूं, एक वेसल के अंदर ले लिया मैंने, उसके नीचे से मैंने बर्नर स्टार्ट करके उसको हीटिंग करना शुरू कर दिया. अब हीटिंग करने की वजह से व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन, सपोज दिस इज माय वन स्मॉल आइस क्यूब. ये मेरे पास एक आइस क्यूब का टुकड़ा है. तो जैसे ही आपने हीटिंग शुरू की तो आइस क्यूब का जो टुकड़ा है उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, यू आर सप्लाइंग द हीट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ बर्नर. विच काइंड ऑफ एनर्जी यू आर सप्लाइंग? हीट एनर्जी. हीट एनर्जी यू आर सप्लाइंग टू द आइस क्यूब. हीट एनर्जी सप्लाई करने की वजह से जो आइस क्यूब के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है ये क्या कर देंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे. और हमें मालूम है अगर कोई चीज मूविंग है then that object is having a which kind of energy? Kinetic energy. ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी होती है उस टाइम पे? काइनेटिक एनर्जी. तो ऐसा हम कह सकते हैं कि if you are supplying the heat energy to the ice cube, then the kinetic energy of water molecules get increased. So as the heat energy increase, the kinetic energy of the object will increase.
एक समय ऐसा आएगा कि ये जो पार्टिकल्स है आइस क्यूब के वो इतना वाइब्रेट करेंगे या तो शुरू कर देंगे कि वो क्या करेंगे, अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। और क्या होना शुरू हो जाएगा, आइस क्यूब्स का किसमें कन्वर्जन हो जाएगा, वाटर के अंदर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसे हीट एनर्जी एक्सटर्नली सप्लाई करो। आप आइस क्यूब को लेके एटमॉस्फेयर में रख दो, फिर भी क्या होगा, वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो हीट उसको कहां से मिल रही है, एटमॉस्फेयर में से, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज 25 to 30 डिग्री सेल्सियस एवरेज। ओके, सो होगा क्या, आइस क्यूब्स के जो वाटर मोलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, यानी कि उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी, इफ यू आर सप्लाइंग दी हीट एनर्जी। और एक समय ऐसा आएगा कि वो काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि आइस क्यूब्स अपने बॉन्ड को तोड़ के, अट्रैक्शन को तोड़ के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के अंदर। तो हमें मालूम है कि सॉलिड स्टेट में, ये कौन सा स्टेट है, सॉलिड, तो सॉलिड स्टेट के अंदर इसके पास जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होता है। लेकिन मैंने बाहर से उसको मूव करवाना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा, उसके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने लगेंगे और वो कन्वर्जन किस में हो जाएगा, वाटर के अंदर। समझ में आया। लेकिन इसके अंदर मैं सप्लाई क्या कर रहा हूं, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज देयर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो जिस टेम्परेचर पे ये जो सॉलिड आइस क्यूब्स है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, मेल्ट होना शुरू हो जाए मतलब आइस में से वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। विच पॉइंट वी कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड। सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर, उस मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर कि जिस पॉइंट पे आइस क्यूब जो है वो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उस पॉइंट या तो उस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.15 केल्विन। ये कुछ नहीं है, ये टेम्परेचर का यूनिट है। केल्विन जो आप देख रहे हो, आपके क्लास का केल्विन वो नहीं है, ये है टेम्परेचर स्केल, जो ऐसा यूनिट के अंदर नापा जाता है। और इसको अगर मैं सेल्सियस में कन्वर्ट करूं, किस में कन्वर्ट करूं, सेल्सियस के अंदर, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सर 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली। ओके, ये कन्वर्जन है। समझ में आ गया सभी को। सो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कौन सा है, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आइस क्यूब क्या करना शुरू कर देते हैं, मेल्ट करना। समझ में आया। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि जिसमें सॉलिड स्टेट आइस क्यूब कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, और उसमें से कन्वर्ट किसमें होना शुरू हो जाए, लिक्विड स्टेट में। किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, लिक्विड स्टेट में, यानी कि वाटर में। तो उस प्रोसीजर को कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं, फ्यूजन। समझ में आया सभी को। अभी जब भी आप आइस क्यूब्स को गर्म करते हो, मतलब हीट एनर्जी सप्लाई करते हो, तो ये हीट एनर्जी सप्लाई करने की वजह से ये आइस क्यूब का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। खास ध्यान रखिएगा सभी लोग, वापस दोहरा रहा हूं इस चीज को। टेम्परेचर ना तो इंक्रीज होता है ना तो डिक्रीज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सर हीट एनर्जी सप्लाई करने के बाद भी टेम्परेचर कांस्टेंट, हाउ इट विल पॉसिबल, हाउ इट वाज पॉसिबल? It is possible because the heat energy that you are supplying is utilized to convert state from solid to liquid. यानी कि आपने जो हीट एनर्जी सप्लाई की, वो हीट एनर्जी किसमें यूटिलाइज हुई, तो कि सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। वो हीट एनर्जी टेम्परेचर को ना तो इंक्रीज करने में सप्लाई हुई ना तो डिक्रीज करने में सप्लाई हुई। समझ में आया सभी को। सर उस हीट को तो हम क्या कहेंगे, हीट एनर्जी कहेंगे, क्योंकि उसकी वजह से तो टेम्परेचर ही नहीं बढ़ता। नो, द अनदर नेम ऑफ दैट हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इज अ टाइप ऑफ हीट विच इज ओनली यूटिलाइज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। The heat which is only utilized to change state of matter is known as latent heat. ऐसी हीट कि जो
मैटर के स्टेट को चेंज करने में ही यूटिलाइजेशन में आए या तो उसका उपयोग हो, तो वैसी हीट को कौन सी हीट हम कहेंगे? लेटेंट हीट। और जिस हीट से सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि आइस क्यूब का कन्वर्जन अगर वाटर के अंदर हो रहा है तो उस हीट को हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आया सभी लोगों को? चलिए, दैट्स इट। आगे देखते हैं। अभी ये दूसरा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। ये एक सिचुएशन हमने ली, हीटिंग ऑफ आइस क्यूब्स। तो यहां पे मैं दूसरी सिचुएशन ले रहा हूं, हीटिंग ऑफ, क्या लिखा हुआ है? वाटर। हीटिंग ऑफ वाटर। तो हमें मालूम है कि जब भी हम वाटर को हीट करते हैं तो एक सिचुएशन के बाद उसमें से हमें गुजराती में कहते तो वराड़ આવવાની આપણને लागवानी चालू થઈ जाए। हम जनरली पानी गर्म करने के लिए रखते हैं तो एक समय तक पानी गर्म हुआ और उसके बाद उसमें से वेपर कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को? तो होता क्या है कि ये लिक्विड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट यानी कि वाटर कन्वर्ट किस में होना शुरू हो जाता है? यहां पे जो आपको ये दिखाई दे रही है वेपर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और ये क्या है? गैसियस स्टेट। कौन सा स्टेट है? गैसियस स्टेट। तो सर ये तो लिक्विड में से कन्वर्जन हुआ गैसियस में, तो इसका नाम यहां पे रहा, इट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। व्हाट इट इज कॉल्ड? वेपराइजेशन। The process in which the liquid state is converted into the gaseous state, that process is called as vaporization. Vaporization की definition ये होगी आपकी। वीडियो रिवाइंड करके भी आप लिखनी हो तो लिख सकते हो। What is the definition of vaporization? तो अभी भी इसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। When the liquid state gets converted into the vapor, लिक्विड स्टेट में से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तभी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। समझ में आया? तभी क्या होता है? लिक्विड स्टेट में से वेपर स्टेट में सिर्फ कन्वर्ट होती है वाटर की फॉर्म। तो उसको क्या कहेंगे? उसको भी लेटेंट हीट कहेंगे। लेकिन लेटेंट हीट कैसी? वेपराइजेशन वाली। तो इसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन का मतलब सॉलिड में से लिक्विड, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब लिक्विड में से गैसियस। समझ में आया? और जब भी ये वेपर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना शुरू हो जाना। क्या होना शुरू हो जाना? उबलना। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, एंड फॉर वाटर इट इज 373 डिग्री केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? वेपर के अंदर। उसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ता। उसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ता। अगेन आई एम रिपीटिंग, उसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ता। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर का टेम्परेचर आप बढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे वाटर में से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और उसको जब भी लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए उसको, उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जब ये बॉइलिंग होना शुरू हो जाए उस पॉइंट को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। सो दिस इज वन टॉपिक of can matter change its state, effect of temperature. It is completed in this lecture. So I hope कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। That's it. Stay home, stay safe.